Bismillahirrahmanirrahim. So, welcome to this next lecture of structural dynamics. So, I hope that so far the journey towards this dynamics along with me is going fine, and you are enjoying every bit and every lecture of it. And as you are observing, as you are watching my lecture, you might have observed that things are getting interesting day by day, lecture by lecture, and the level of difficulty is also increasing. But the most important thing is that the level of interest in things which are being taught, they are also getting interesting as well. So I hope the test went well. I'll go through it. I will check the attempt that you people have made. So today's lecture is all about because so far we have covered the free vibration of the damped and the undamped structure, and today's lecture is all about the inclusion and the consideration of the external forces. Right. So let's jump into the lecture. So this is lecture number 6. As you all know, the subject name is structural dynamics and the code is CE501. I'm Dr. Salahuddin, serving as Associate Professor at Civil Engineering Department, Balochistan University of Engineering and Technology of Uzdar. And today's lecture is about response to harmonic excitations. Right, so there are two types of basic excitation. One is the harmonic excitation, the other is the periodic. As you all know that we have discussed the harmonic forces are also periodic, but not every periodic force or periodic motion is harmonic as well. So we will be studying first the harmonic excitation, and then we will be considering and we will be discussing the periodic excitation as well. Inshallah, hopefully in the second part of the lecture, or maybe in the next lecture, because this harmonic excitation is very broad thing. So we'll be spending a lot of time on understanding of this harmonic excitation, and then we'll be studying the periodic excitation as well. And then gradually we'll jump before the midterm examination. We will be studying the response to pulses as well, ramp forces, single pulse, double pulse, and all those things. So, and then after midterm, inshallah, we will be considering the other consideration as well. So there are a lot of things, as I told you before as well, the things are very interesting, but somehow a bit difficult as well. These sounds difficult because we do not have listened all those things, all these terminologies before, right? So that's why it might sound difficult, but it's very interesting. And if once you have developed the interest in it, you will find things very easy. Because those who are finding it difficult is that you people haven't heard of all those terminologies, of all those concepts before in your civil engineering life. But as with the passage of time, as you will start understanding the basic terminologies, you will start understanding the basic concepts of structural dynamics, you will find a lot of interest. You will find all those things very, very interesting. And when the level of interest would be developed, you will see, you will find that the difficulty would definitely increase, because it's vice versa sort of thing. There's nothing difficult, there's nothing easy. Anything you understand, anything you learn, that become very easy to you, right? And a thing that you cannot learn, that you cannot understand, that sounds difficult to you. So try to spend your time on all those lecture and understanding all those things, all those concepts. I mean, you are very lucky people that because of this online pandemic, the online classes are being held, and you are learning at your comfort. I've repeatedly told you that you have all the liberties. You have my video lectures, you have my PowerPoint presentation, I have given you the books as well. I've given you multiple, about 10 books. So whenever you find time, in spare time in reading all those books, so you have all those 3-4 mediums available to you for your understanding, for your learning. And the best thing is that in normal face-to-face teaching, the only opportunity that you find is learning through within the class, right? So whatever we used to deliver in the class, that was the sole opportunity, that was the sole time that where you could learn. But in this online thing, you can watch my lecture anywhere. You can watch my lecture, you can pause, then you can go out, you can relax, you can come back, and then you can watch again from where you left, right? But in the face-to-face teaching, once you have
wasted your that particular instant of time when I was delivering the lecture in the class, if you have wasted that particular opportunity, then it was really impossible for you to grasp all those things again. So in this online thing, it's on your own comfort. I mean, even while driving, you can listen to my lecture. Don't watch my lecture during driving, but if you are driving, you can even listen to my lecture. So any time you can utilize for learning the structural dynamics course. So I particularly find this online teaching is very helpful tool, as very important tool, I think, in the learning. And I personally believe that this mode of teaching should be continued even if the face-to-face teaching is started again, right? So let's start our lecture today. As I told you, this is about the response to harmonic excitation. So I've just included a little recap. I have told you in my discussion as well that we have discussed the free vibration of the undamped and the damped structure. We have discussed all those things in very detail. We have solved problem as well. I think we also solved the problem of the damped vibration as well. So we have covered all those things in detail, right? So next thing, inshallah, as I told you, is a bit more interesting, the inclusion of the excitation, dynamic excitation, and the basic and the foremost excitation is the harmonic excitation. So the question that arises right now is what is harmonic force, right? You have studied the harmonic vibration, you have studied the periodic vibration, but what would that harmonic force be? So that's what we will be, inshallah, discussing in this particular slide. Like structures subjected to forces are displacements. So we have discussed the structure subjected to displacement whose magnitude represented by sine or cosine function of time. We have discussed the displacement, right? But right now we are discussing the structures subjected to forces whose magnitude may be represented by a sine or cosine function. So I'll be just trying to make you understand what is this sine or cosine function and what sort of forces can we represent by the sine or cosine functions, right? So harmonic excitation, not the periodic excitation, right? So just keep this periodic excitation aside right now, and when we'll finish the harmonic excitation, harmonic forces, then we will be inshallah jumping into the periodic excitation as well. So right now we are discussing the harmonic excitation. So harmonic excitations are encountered in engineering system. It can be encountered in engineering system. Definitely we are studying the engineering system, such as forces due to unbalanced rotating machines. In the next slide I will show you what is basic look of a rotating machinery, right? So structures subjected to forces or displacement whose magnitude may be represented by a sine or cosine function. This is a small video, so just try to concentrate on the base moment of this particular assembly, right? And then inshallah in coming slides I will be showing you the moment of the structure as well. Okay, then we will be discussing the moment of this particular structure as well. So right now इस टाइम पे आपको क्या करना है कि ये जो इसकी जो बेस की मोमेंट है, इसको आपने देखना है कि ये किस किस्म की मोमेंट है, क्या इसके अंदर एक हार्मनी है, क्योंकि हम फिर इसको डिस्कस करेंगे कि साइन और कोसाइन फंक्शन नज़र कैसे आते हैं. तो अब उसके जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है साइन और कोसाइन फंक्शन की, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में आएगी. तो यहाँ जो इस पर्टिकुलर वीडियो के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हार्मोनिक फोर्सेस अगर किसी स्ट्रक्चर पे अप्लाई हों तो वो कैसे होंगी. सो लेट्स वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो. ये देखें, ये इसने फिलहाल अपने हाथ से इसको हिला के आपको दिखाया है, डैम्पिंग दिखाई है. ये अब इसने ये अगर आप इसकी मोमेंट टेबल की देख रहे हैं बेस के ऊपर, राइट, अगर आप इसकी मोमेंट देख रहे हैं, मैं ये साउंड इसकी बंद कर देता हूँ ताकि मेरी साउंड आपको क्लियर नजर आए. तो ये अगर आप मोमेंट देख रहे हैं तो इसकी एक हार्मोनिक मोमेंट है, एक इस पीक पे जा रहा है, जीरो पर आ रहा है और फिर दूसरे पीक पे जा रहा है. तो ये जो एक ग्राउंड मोशन हो रही है, इसकी बेस पे मोशन हो रही है, ये कैसी मोशन है? ये एक हार्मोनिक मोशन है. दिस इज आप ये कह लें कि बेसिक लुक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि हार्मोनिक फोर्सेस की लुक किस किस्म की होती है, स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरीके से लगती हैं. कि एक आपके पास 0 पॉइंट से एक मैक्सिमम राइट पीक पे जा रहा है एंड देन कमिंग बैक टू 0 पीक एंड 0 पॉइंट एंड देन इट्स गोइंग टुवर्ड द नेगेटिव साइड
and then it's achieving a negative peak, and then this particular motion would continue as long as you are applying the force. ठीक है, सो ये अब हम देखेंगे कि जब तक फोर्स लग रही है तो वो कौन सी एक्साइटेशन है, और अगर हम फोर्स बंद कर देते हैं और फिर भी स्ट्रक्चर वाइब्रेट कर रहा है तो वो फिर कौन सी है. आगे आप देखेंगे कि आपको टर्मिनोलॉजी सुनाई देंगी, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन की आपको टर्मिनोलॉजी सुनाई देगी, आपको स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन की टर्मिनोलॉजी ना सिर्फ सुनाई देगी बट इंशाल्लाह हम उसको समझने की भी कोशिश करेंगे. तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ दिखाने की कोशिश की है कि हार्मोनिक जो फोर्सेज हैं वो नज़र कैसी आती हैं. ठीक है, सो व्हाट इज हार्मोनिक फोर्स, उसी की डिस्कशन को हम आगे चल रहे हैं कि द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम टू हार्मोनिक एक्साइटेशंस प्रोवाइड इनसाइट. ये एक आपको अंडरस्टैंडिंग देती है, एक इंसाइट देती है, एक आपके पास एक आपके समझ लें कि एक तस्वीर आपको दिखाती है इनटू हाउ द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड टू अदर टाइप ऑफ फोर्सेज. ठीक है, कि किस तरीके से ये एक मैंने जैसे आपको बताया था लेक्चर में कि एक बेसिक टाइप और सबसे आसान टाइप ऑफ फोर्स है जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं, मैथमेटिकली समझ सकते हैं, और उसकी जो एप्लीकेशन है ओवर द स्ट्रक्चर, उससे जो वाइब्रेशन आ रही है उसको हम डिराइव कर सकते हैं. तो जिस तरीके से आपने देखा था कि हमने सबसे पहले फ्री वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन को पढ़ा कि वो सबसे बेसिक चीज़ थी. तो जो एक्साइटेशन है, डायनेमिक एक्साइटेशन की जो सबसे बुनियादी और सबसे आसान चीज़ है वो ये हार्मोनिक फोर्स है. तो इसको अगर आप समझ लेते हैं तो ये आपको थोड़ा सा क्या आपको, जिसे मैंने वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया ना, इंसाइट आपको मिलेगी, एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि स्ट्रक्चर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अदर टाइप ऑफ फोर्सेस को, जैसे पल्स फोर्सेज हैं, जैसे ब्लास्ट फोर्सेज हैं, जैसे पीरियोडिक फोर्सेज हैं, जैसे अर्थक्वेक फोर्सेज हैं, जैसे विंड फोर्सेज हैं. तो डायनेमिक फोर्सेज और मैनी टाइप ऑफ फोर्सेज जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था. ये अर्थक्वेक डायनेमिक है, विंड लोडिंग डायनेमिक्स है, इवन स्नो लोडिंग डायनेमिक्स है, इवन ये जो वाटर करंट्स हैं, जो पानी की लहरें आके आपके ऑफशोर स्ट्रक्चर से टकराती हैं, वो आपके पास सारी डायनेमिक फोर्सेज हैं. तो ये जो पर्टिकुलरली हार्मोनिक फोर्स है ये एक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही होगी कि भाई किस तरीके से बाकी फोर्सेज का एनालिसिस और किस तरीके से बाकी फोर्सेज का इफेक्ट आ रहा होगा आपके स्ट्रक्चर्स के ऊपर. ठीक है, सो द थ्योरी ऑफ फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन हैज सेवरल यूजफुल एप्लीकेशंस इन अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. तो जब हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग को इंशाल्लाह लास्ट पार्ट जो है, हमारे कोर्स का लास्ट पार्ट जो है, उसमें हम इंशाल्लाह अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ रहे होंगे कि रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा कैसे बनते हैं, और जो अर्थक्वेक की सारी एप्लीकेशंस हैं, जो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हम इंशाल्लाह इस कोर्स के एंड में ज़रूर कवर करेंगे. तो वो ये जो है ये पर्टिकुलर आपको काफ़ी यूज़फुल एप्लीकेशन आपको इस हार्मोनिक फोर्सेस की नज़र आएंगी और अर्थक्वेक इंजीनियरिंग. तो ये जो अब एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये जो राइट के ऊपर आपको नज़र आ रही है, ये अगर आप देख रहे हैं कि इसमें अंदर बॉल है, ठीक है ना, इस बॉल के ऊपर टॉप पे एक मास रखा हुआ. अब ये क्या, ये जो बॉल मूव करेगी, बॉल जो मूव करेगी तो ये क्या होगा, जैसे ही बॉल नीचे आएगी तो एक आपको जर्क लगेगा, एक फोर्स अप्लाई होगी. ठीक है ना, तो ये मूविंग होगा. तो ये रोटेटिंग मशीन है. ये इसका मतलब ये है कि ये एक सिलेंडर है. जैसे अगर आपने अपनी जो मटेरियल्स की लैब में देखा होगा, ये हम एब्रेजन टेस्ट करते हैं, क्या कहलाता है वो, एग्रीगेट का एब्रेजन टेस्ट करते हैं, तो उसमें मशीन गोल घूमती है, और जैसे ही वो मटेरियल नीचे आता है तो ढक करके मटेरियल नीचे करता है, फिर जाता है, तो वो भी एक रोटेटिंग मशीन है. ठीक है, ये जैसे अगर आपके जो कंक्रीट मिक्सचर होते हैं ये भी घूम रहा होता है, तो ये भी एक रोटेटिंग मशीन है. तो ये जो सारी ये चीज़ें हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, आपका प्रेजेंट टेस्ट वाला और ये कंक्रीट मिक्सचर वाला, तो ये दीज आर ऑल रोटेटिंग मशीन. तो दिस इज द बेसिक लुक ऑफ अ रोटेटिंग मशीन दैट यू आर वॉचिंग, दैट यू आर हैविंग अ लुक एट, राइट. तो ये क्या हो रही है, ये मशीन जब घूमती है तो इसका जो मास है वो मास नीचे आके वो एक डायनामिक फोर्स लगाता है. तो ये एक हार्मोनिक एक्शन होगा. मास ऊपर है, मास नीचे आया, फिर मास ऊपर गया, फिर मास नीचे आया. तो ये कंप्लीट जो हार्मोनिक साइकिल्स होते हैं, साइन साइकिल या कोसाइन साइकिल जो होते हैं, वो ये उसकी एक रिप्रेजेंटेशन दे देती है. तो ये मैंने एक रोटेटिंग मशीन का, चूंकि वहाँ लास्ट स्लाइड में हमने नाम लिया था, तो मैंने कहा कि आपको एक लुक दे दूँगा कि किस किस्म की रोटेटिंग मशीन होती है. मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दे दिए हैं रोटेटिंग मशीन की. ठीक है, सो अब हम अपने जो मेन चीज़ है कि विस्कसली अनडैम्प्ड सिस्टम इज विस्कसली अनडैम्प्ड है, और उसके ऊपर हार्मोनिक फोर्सेस लगी हुई हैं. तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेंगे और फिर हम विस्कस डैम्पिंग को भी इंक्लूड करके देख लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सबसे पहले हम थोड़ा सा आसान कदम उठाएं जिसमें हमने डैम्पिंग को डिसरिगार्ड कर दिया. डैम्पिंग नहीं है, सिर्फ स्टिफनेस फोर्सेज हैं और एक्सटर्नल फोर्सेज हैं. ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि क्या होता है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हार्मोनिक फोर्स, तो हमने इसका एक जो लुक है, उसकी जो एक शेप है, या जो उसका एक बहाव है फोर्स का,
और वो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाने की कोशिश की, वो मैंने आपको जो ये रोटेटिंग मशीन थी इसे भी दिखाने की कोशिश की। अब अगर ये चीज़ को हम मैथमेटिकली देखें कि हम उसको कैसे दिखा सकते हैं मैथमेटिक्स की टर्म में, तो वो यहाँ हम दिखा रहे हैं। तो ए हार्मोनिक फोर्स इज दिस, कि जो पी टी है, ज़ाहिर है अगर आप देख रहे हैं ब्रैकेट में टी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि दिस इज टाइम डिपेंडेंट फोर्स, दिस पर्टिकुलर फोर्स वेरीज विद द टाइम एंड दिस इज इक्वल टू पी नॉट साइन ओमेगा टी। सो डेफिनेटली अगर आप देख रहे हैं कि दो टर्म्स आई हुई हैं जो राइट साइड पे इक्वेशन के, एक पी नॉट आपको नजर आ रहा है और एक ओमेगा नजर आ रहा है। ओमेगा की टर्म आपकी सुनी हुई, आपकी समझी हुई टर्म है, आप इसको जानते हैं ओमेगा क्या, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब हम इसके साथ सब्सक्रिप्ट में एन डाल देते हैं तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम हो जाती है। यहाँ चूंकि ये पी नॉट के साथ ओमेगा लगा हुआ है ना, तो पी नॉट के साथ ओमेगा लगने का मतलब ये कि पी नॉट की वेरिएशन को दिखा रहा है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, कि ये जो आपके फोर्स लग रही थी, टेबल मूव कर रही थी, ये अगर स्लो मूव कर रही है तो नंबर ऑफ साइकिल इन अ सेकंड 5 थे, अगर ये आपके पास तेज मूव करने लग रही है तो 10 है, और तेज कर दिया तो 20 है। तो दिस इज द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी बिकॉज सबस्क्रिप्ट एन इज नॉट अटैच विथ दिस पर्टिकुलर ओमेगा। सो इफ नो सबस्क्रिप्ट इट मीन दिस इज द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, राइट। एंड पी नॉट एज आप देख रहे हैं कि अगर साइन 0 इज 0, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पी नॉट वुड बी 0। सो पी नॉट इज द एम्पलीट्यूड। जब अगर आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को प्लग इन करना शुरू करेंगे, साइन की और ओमेगा टी की वैल्यूज को आप पुट इन करना शुरू करेंगे, तो आपके पास क्या आना शुरू हो जाएगा, 1.0 आएगा, 90 आएगा, फिर ये 180 आएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स दिखा रहा है। पी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो अगर इस फोर्स को आप देखना चाहते हैं तो दिस फोर्स विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो मैं यहाँ ये ले लेता हूँ पॉइंटर, तो फिर आपको, तो अगर आप यहाँ देखें इस पर्टिकुलर जगह पे, तो यहाँ जो वेव शुरू हो रही है, कर्व शुरू हो रहा है, वो 0 से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये है कि और ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये पर्टिकुलर चीज़, ये अगर हम इसको टाइम ले लेते हैं तो टाइम इज 0। व्हेन टाइम इज 0 तो साइन 0 इज 0, सो पी नॉट वुड आल्सो बी 0, तो पी टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे 0 पे आ गई। इस तरीके से जब आप इसके अंदर टी की वैल्यूज प्लग इन करते रहेंगे तो ये पी का एम्पलीट्यूड आया, किस पॉइंट के ऊपर आया, 90 डिग्री के ऊपर आया, π/2 के ऊपर आया, रेडियंस में फिर ये π/2 हो जाता है। तो अगर आप π/2 लिखेंगे, साइन 0 इज 0, साइन 90 इज 1, तो इसका मतलब ये है कि अगर जब 90 पर पहुंचेगा तो ये पूरी जो साइन ओमेगा टी की टर्म है ये 1 हो जाएगी और आपके पास पी नॉट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है फ्रॉम 0, जो पी नॉट की वैल्यू वेरी कर रही है वो दैट वेरीज फ्रॉम 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू व्हेन साइन ओमेगा टी इज 1। तो 0 से 1 के दरम्यान, व्हेन इट इज 0 सो होल टर्म इज 0, व्हेन इट इज 1 so whole term is at the maximum which we call as p naught, the amplitude, and then फिर ये इसके बाद दोबारा डिक्लाइन की तरफ जाएगा और साइन 180 जो होता है वो तो फिर दोबारा 0 हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है पाई वाला जिसको 180 कहते हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर पहुंच के एम्पलीट्यूड दोबारा ये पी नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी और फिर ये माइनस साइकिल के ऊपर ऑन दी अदर साइड के ऊपर चली जाएगी और फिर इस तरीके से ये 270 आ गया और फिर ये 360। तो दिस इज हाउ अ साइन वेव विल लुक लाइक। अब ऑन द कॉन्ट्ररी इसी तरीके से हार्मोनिक फोर्स को हम ये भी कह सकते हैं कि पी टी इज इक्वल टू पी नॉट कॉज ओमेगा टी, क्योंकि साइन और कॉज दोनों हार्मोनिक टर्म्स हैं, ये दोनों जो वेव्स बनती हैं वो हार्मोनिक वेव्स बनती हैं इससे, ठीक है। तो अगर इसको आप देखेंगे तो अब इन दोनों का फर्क आपको मैं अगर पिक्चर दिखाने से पहले बता दूं कि अगर आप 0 रख रहे हैं तो साइन 0 इज 0 और अगर आप 0 कॉज में रख रहे हैं तो कॉज 0 इज 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर साइन वाला कर्व था ये जब शुरू होगा तो 0 से शुरू होगा और cos 0 जब 1 होता है, अगर टाइम आपने 0 रख रहे हैं तो एट 0 पॉइंट दिस पर्टिकुलर वैल्यू वुड बी एट द पीक एट द एम्पलीट्यूड। तो अगर आप इसको यहाँ देखें, ये देखें, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो दिस पर्टिकुलर साइन कर्व जो है दिस स्टार्ट फ्रॉम 0 when time is equal to 0 and this particular curve which is the cosine curve at time 0 it start from the amplitude, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कर्व है ये है कोसाइन कर्व एंड दिस इज अ साइन कर्व। अगर आप इसको दोनों को बिल्कुल देख रहे हैं तो दोनों के कर्व का जो वेव्स का जो भाव है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका वो डिफर करता है, क्योंकि साइन 0 इज 0 एंड कॉस 0 इज 1। सो दिस इज हाउ अ हार्मोनिक फोर्स मैथमेटिकली लुक लाइक, ठीक है। तो इसको यहाँ से गौर से आपने देखना है कि इसकी लुक कैसे है, क्योंकि ये जो टर्म है पी नॉट साइन ओमेगा टी जब हम इसको अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर प्लग इन करेंगे तो ताकि आपको ये कोई नई चीज़ नज़र ना आ रही हो,
ठीक है। तो अब इसके अंदर जो टर्म इस्तेमाल हुई है, वेयर पी नॉट इज द एम्पलीट्यूड आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स, ठीक है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज कॉल्ड द एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी आर फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी। इसको आप एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, इसको आप फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। सो इट इज नॉट द सेम एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। मैंने भी आपको पहले बताया कि ओमेगा एन की तरह नहीं, ओमेगा एन इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है, एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग फोर्स ऑफ द डायनेमिक फोर्स, ठीक है। तो होप ये आपको समझ में आया है। तो अगर नहीं है तो जब आप इस लेक्चर को क्लास के बाद दोबारा देखेंगे और आपको अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन नज़र आती है, जिस स्लाइड में भी कन्फ्यूजन नज़र आती है, तो स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके मुताबिक जो भी क्वेश्चन है वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। सर इस चीज़ में ये जो जहाँ जो चीज़ आपने प्लग इन की हुई है या लिखी हुई है, ये इसका कंसेप्ट क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है। सो इसमें जो टाइम पीरियड है, ये देख रहे हैं, अगर एक पीरियड मैंने यहाँ भी दिखाया हुआ है और एक पीरियड यहाँ भी दिखाया हुआ है, पीरियड का तो कंसेप्ट आपको हमेशा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पीरियड जो है वो यहाँ t इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा इज द एक्साइटिंग पीरियड आर द फोर्सिंग पीरियड। तो एक टर्म एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी आर द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है, द अदर टर्म उसी पीरियड के साथ अगर आप एक्साइटिंग पीरियड और ये दूसरा जो कौन सा है फोर्सिंग पीरियड लगा देंगे तो ये पीरियड बन जाएगा, ठीक है। तो पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ द फोर्सिंग एक्साइटेशन, और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ दिस फोर्सिंग फोर्स ऑफ दिस डायनेमिक फोर्स, ठीक है। तो ये जनरली जब आप साइन ले लें या कोसाइन ले लें तो एनीथिंग कैन बी लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड पी नॉट एंड दिस इज द पीरियड विच इज टी एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। एंड अगर ये फोर्स इंडेफिनिट चल रही है, जाहिर सी बात है कोई इन्फिनिट टाइम के लिए नहीं चलती, अगर इन्फिनिट के लिए चल रही है तो दिस कर्व विल कंटिन्यू ऑन जब तक आप को बटन को बंद करके, या अगर आप मैनुअली फोर्स लगा रहे हैं आप खुद थक नहीं जाते और उस फोर्स को वहाँ से रिमूव नहीं कर देते, राइट। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये जो फोर्स है तो फोर्स हार्मोनिक वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम विदाउट डैम्पिंग। अब आपने क्या करना है, अब आपने फोर्स को समझ लिया है, उस फोर्स को आपने एक अनडैम्प्ड सिस्टम के ऊपर उस फोर्स को लगा दिया है और वो सिस्टम में अब वाइब्रेशन इंड्यूस हो गई है। तो ये जो वाइब्रेशन होगी उसकी वाइब्रेशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इट विल लुक लाइक दिस। तो अगर आप इसको देख रहे हैं कि दिस इज एम यू डबल डॉट, this is ma acceleration term inertial forces and this is the ku the stiffness forces, and then in जो हमने आपसे पहले तक पढ़ा है we used to put in zero here because we were saying this is the free vibration, उसके अंदर forces zero थी। अब अगर आप देख रहे हैं तो हमने साइन ओमेगा टी पी नॉट साइन ओमेगा टी की टर्म यहाँ प्लग इन कर दी। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्स अनडैम्प्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन। क्या है, दिस इज द differential equation of the undamped force harmonic vibration, right। अब हमारा काम क्या होगा कि जब तक हम अनडैम्प्ड सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो हमने इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन देखना होगा, और उस सोल्यूशन में जो वाइब्रेशन का जो सोल्यूशन आएगा उसकी इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को हम देखेंगे कि वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्या नॉलेज दे रही है, ठीक है। सो द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है, तो इसका जो इक्वेशन है कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स एज गिवन बाय द फॉलोइंग। जिस तरीके से हम पहले करते रहे तो वो एक सिंगल पार्ट में हम उसको ले लेते थे, तो अब उसके 2 पार्ट होते हैं, जिसको जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को जानते हैं वो उस चीज़ को समझ रहे होंगे, जो नहीं जानते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन की किताबें पढ़ के और उसको दोबारा खोल के या किसी ऐसे बंदे से जो डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छा जानता हो उससे आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन फॉर द डायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर इस पर्टिकुलर कोर्स को आपने देखना है तो फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जंप करने की जरूरत नहीं है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, क्योंकि वो एक कंप्लीट कोर्स है ना, तो उस कोर्स को ज़ाहिर हम नहीं पढ़ रहे, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेप्थ को समझे बगैर भी हम ये पर्टिकुलर जो कोर्स है, बुक है जो चोपड़ा वाली है, मारियो पास वाली, इनमें खूबसूरती यही है कि इन्होंने इस कंटेंट को ऐसे प्रेजेंट किया है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन के बगैर भी इसको आप समझ सकते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन होता है यू टी, ठीक है, तो वो 2 पार्ट पर मुश्तमिल होता है, वन इज द कम्प्लीमेंट्री पार्ट, वन इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन,
ठीक है। तो देर आर टू सोल्यूशन ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वन इज नॉन एज UCT, इसको हम कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन कह रहे हैं, और P की जो टर्म है वो पर्टिकुलर सोल्यूशन की है। तो इसका मतलब ये है कि दो तरीके के सोल्यूशन लाएंगे और फिर UC का जो सोल्यूशन होगा वो प्लस UP का जो सोल्यूशन होगा, दोनों को हम रखेंगे और दोनों का जब एडिशन करेंगे तो दैट विल गिव यू द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अनडैम्प्ड फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन। ठीक है। जो ये सोल्यूशन है UCT इज इक्वल टू A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी। तो ये अगर आप चीज़ देख रहे होंगे तो ये हमने जब अनडैम्प्ड सिस्टम को पढ़ रहे थे तो यहाँ जब साइन का एक ये सोल्यूशन आया था तो हमने ये सोल्यूशन उसका सजेस्ट किया था कि दिस सजेस्ट क्या किया था, एंड देन वी फाइनली प्रूव दैट एज वेल कि भाई यस दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ जो कम्प्लीमेंट्री पार्ट है उसका सोल्यूशन जो है वो ये है A sin ओमेगा टी प्लस B cos ओमेगा टी। So the homogeneous solution that give the free vibration response, ये वो सोल्यूशन है जो कि फ्री वाइब्रेशन का जब आपने रिस्पांस पढ़ा था तो ये वो रिस्पांस, ये कम्प्लीमेंट्री पार्ट है इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का। मतलब ये है कि अगर आप इसके अंदर ये P नॉट को हटा देते हैं और आप ये इक्वेशन लिखते हैं कि MU डबल डॉट प्लस KU इज इक्वल टू 0, ठीक है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो यू विल गेट दिस पर्टिकुलर थिंग। वाइल ऑन द राइट हैंड साइड जो P नॉट साइन ओमेगा टी है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो वो आपको एक पर्टिकुलर सोल्यूशन देता है कि वेयर UPT इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन दैट गिव्स द बिहेवियर जनरेटेड बाय द फॉर्म ऑफ द डायनामिक लोडिंग। ये जो सोल्यूशन है ये बिहेवियर आपको बता रहा होता है कि किस किस्म की डायनामिक लोडिंग लगी हुई है। तो आप अगर आगे चल के जब आप देखेंगे ना कि ये जब हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ, जिसे हमने नेक्स्ट उसमें पढ़ना है पीरियोडिक फोर्सेस, तो पीरियोडिक फोर्सेस का भी यही रहेगा, एक वन वुड बी कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड अदर वुड बी द पर्टिकुलर सोल्यूशन। जो पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा वो जो आपकी पीरियोडिक फोर्स लग रही होगी उसमें से निकल के आ रहा होगा। जब वो आपकी पल्स फोर्स लग रही होगी तो उसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। जब वो आपके पास अर्थक्वेक फोर्स लग रही होगी तो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो दिस इज दी, आप ये समझ ले, फाउंडेशन ऑफ द डायनामिक फोर्सेस, ये जो सोल्यूशन है। इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए इस टाइम पे बड़ी ज़रूरी है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकें कि ये जो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये जो फिक्रा है कि दिस गिव्स द बिहेवियर generated by the form of the dynamic loading. So we are not particularly saying that this is the harmonic loading. This particular solution generally gives you the behavior of the dynamic loading. Whatever type of dynamic loading you have applied on your structure, be it periodic force, be it the pulse forces. In the pulse forces में जब मैं आपको बता रहा हूँ तो pulse forces में सिर्फ एक pulse force नहीं होती, उसके अंदर rectangular pulse है, उसके अंदर triangular pulse है, उसके अंदर different type of pulses को हम देखेंगे। वो बड़े छोटे छोटे से हैं लेकिन वो सारी की सारी हमने देखनी है। pulses मुख्तलिफ किस्म की pulses होंगी, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, यहाँ जो इस पर्टिकुलर स्लाइड का क्रक्स है वो ये है कि कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन गिव्स यू द बिहेवियर ऑफ फ्री वाइब्रेशन, ठीक है, एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन गिव्स यू द बिहेवियर ऑफ अ फोर्स वाइब्रेशन। द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द इनिशियल कंडीशन, जाहिर सी बात है आपने फोर्स लगाई है, क्या उसमें कोई इनिशियल कंडीशन भी थी, क्या स्ट्रक्चर पहले से डिस्प्लेस था या नहीं था, क्या स्ट्रक्चर में पहले से मूवमेंट थी और आपने आगे उस पर से फोर्स लगाई थी। तो इनिशियल कंडीशन जो उसकी वाइब्रेशन होंगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनिशियल कंडीशन का इन्हिसार होगा। तो इनिशियल कंडीशंस क्या है वो हम ये इनिशियली कह रहे हैं कि जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है टाइम जीरो, हम उसको यू नॉट कह रहे हैं, एंड द इनिशियल वेलोसिटी जो होगी टाइम जीरो के ऊपर हम उसको यू डॉट नॉट कह रहे हैं। तो दिस इज द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट while this is the initial velocity and we are calling it the equation number 2 and these are the initial condition, ठीक है। तो this can vary, इसलिए हमने इसको generalize लिखा हुआ है ना, at displacement at time zero, we are not saying that this displacement at time zero is zero, so this is the displacement when time is zero. So time is zero का मतलब ये है कि this is the initial condition, ठीक है। velocity when time is equal to zero, this means कि this is the velocity when time is equal to, not necessarily that this particular velocity is zero at this particular time. So this can be of any value, right? This can be 0, this can be 1, this can be 2, this can be anything, whatever the situation is. So particular solution of this equation जो हमने वहाँ देखी थी उसका सोल्यूशन UPT इज इक्वल टू C साइन ओमेगा टी। तो यहाँ अगर आप देख लें तो A और B के जो दो कांस्टेंट थे वो पहले भी आ चुके हैं, वो हमने कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर लिख दिए। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में एक और कांस्टेंट आ रहा है C, तो ये क्या आएगा ये भी हम आगे देखेंगे। अब इसके आगे जो नंबर ऑफ इक्वेशन है वो हम लिखते चले जा रहे हैं ताकि आगे चल के, चूंकि हमें इसको रेफर करना पड़ेगा तो वो इक्वेशन हमारे काम की होंगी। तो वी आर एट दिस पर्टिकुलर टाइम वी आर सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3।
सो इफ यू डिफरेंशिएट, बिकॉज वी आर सेइंग दैट दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन, सो आपको फिर इसके अंदर वेलोसिटी भी चाहिए, इसके अंदर आपको एक्सेलरेशन भी चाहिए। क्योंकि वेलोसिटी की टर्म हमारी इस्तेमाल नहीं होगी क्योंकि हमने अनडैम्प ले लिया है। जब आप डैम्पिंग को इंक्लूड करेंगे तो डैम्पिंग आपको पता है कि डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी, राइट। सो इस टाइप पे हमने जब चूंकि इसको डबल डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं कि वी वांट द एक्सेलरेशन टर्म। So if you differentiate this equation number 3 twice, so you will get minus omega square c sin omega t. So ये differentiation मैंने आपको sin और cos की फर्स्ट डिफरेंशियल क्या होता है तो और cos का क्या होता है ये हमने पहले देख लिया है, पहले आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं पहले के लेक्चर में, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा। तो सिर्फ ये बता देता हूँ कि डिफरेंशियल ऑफ साइन इज cos एंड डिफरेंशियल ऑफ cos इज माइनस साइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये अगर आप साइन का पहले डिफरेंशिएट लेंगे तो cos हो जाएगा, और इस cos को जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन हो जाएगा, ओमेगा बाहर निकल आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन नंबर 3। सो इफ यू पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1, बिकॉज आपको 3 भी मिल गया है, आपको एक्सेलरेशन टर्म भी मिल गई है, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं तो ये आपको ये चीज़ मिल जाती है। तो अगर आप देख रहे हैं एम यू डबल डॉट, दिस इज यू डबल डॉट, तो यू डबल डॉट की जगह पे आपको ये वाली चीज़ मिल गई, ठीक है। के यू की जगह आपको ये मिल गया, और ये पी नॉट साइन ओमेगा टी अपनी जगह आपके ऊपर एज इट इज़ मौजूद है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, तो आपको ये टर्म मिल जाती है कि माइनस एम ओमेगा स्क्वायर सी डिवाइड बाई के प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से के साइन ओमेगा टी को लेकर के आप इसके नीचे भी तकसीम कर दें, इसके नीचे भी तकसीम कर दें, तो मामला आपके पास ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। एंड इस इक्वेशन को यहाँ हमने किसी नाम नहीं दिया है, ठीक है। आगे चल के इस इक्वेशन का कंटिन्यूएशन चल रही है क्योंकि इक्वेशन यहाँ अभी तक फाइनली डिराइव नहीं हुई है। इस इक्वेशन को मज़ीद हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखते हैं कि क्या सिंप्लीफिकेशन होती है। तो यहाँ से हमने जो लास्ट इक्वेशन थी ये वाली, इसमें से हमने c अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी c है, और यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ भी c है। तो दोनों में से c को हमने कॉमन लेके बाहर कर दिया है इस पर्टिकुलर जगह पे। जब बाहर करेंगे तो आपको ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ मिल जाएगी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई ओमेगा एन स्क्वायर। तो ये जो टर्म है ये आगे आप देखेंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका बड़ा इस्तेमाल आएगा, ये बड़ा आपको यूज़फुल कंसेप्ट देती है वाइब्रेशन ऑफ फोर्स स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये आगे चल के देखेंगे, लेकिन इसको हमने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि दिस इज 1 माइनस ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा। है क्या चीज़ देख लें, बेसिकली ये जो टॉप पे ऊपर के ऊपर लिखी हुई है ओमेगा, दिस इज द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ओमेगा एंड दिस इज द सिस्टम ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द रेशियो ऑफ द फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड देन आपने उसका स्केयर ले लिया है, ठीक है। तो ये इसकी क्या यूटिलिटी है ये आगे चल के आएगी। अब सिंस आपको मालूम है कि ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम, दिस इज वेरी कॉमन और ऐसा फार्मूला है जो आपको सबको रट चुका है। तो इस टर्म को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ से देख रहे हैं कि सी जो है, यहाँ जो के की टर्म है वो हमने, ओमेगा एन की टर्म है वो हमने ये बता दी है। तो सी को अगर आपने सिर्फ लिखना है कि व्हाट इज सी, तो सी इस पूरी चीज़ के नीचे से ये तकसीम हो जाएगा। तो पी नॉट के मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग इज बेसिकली द सी, द कॉन्स्टेंट सी। ये क्या है सी, इसका भी बड़ा इस्तेमाल आगे आएगा। So thus particular solution of the differential equation is, so this is now the particular solution, combined solution, क्योंकि c की टर्म आपको मिल गई और आपने जो सोल्यूशन पहले सजेस्ट किया था वो c sin ओमेगा t था, तो ये पूरी चीज़ c लिख दी और ये sin ओमेगा t थी। तो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। अभी तक हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन की तरफ जाना है, एंड देन यू विल कंबाइन द कम्प्लीमेंट्री एंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो डोंट अभी तक ओवर एक्सपेक्टेशन न करें कि चीज़ खत्म हो रही है, सो तब तक बड़ी लंबी कहानी है, हम इंशाल्लाह पार्ट्स में करेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ हम ये चीज़ कह रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आई है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 6 कह रहे हैं, दिस इज ये 6 जो है वो, इसके लिए हम 6 नहीं कह रहे हैं, हम इस इक्वेशन को नंबर 6 कह रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर व्हेन ओमेगा इज नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एन। क्योंकि अगर आप देखें ओमेगा और ओमेगा एन आप एक दूसरे के बराबर कर देंगे तो दिस ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा एन इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, दिस होल 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, दिस होल थिंग विल बिकम इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डायनेमिक के अंदर वो है कि अगर ओमेगा ओमेगा एन के बराबर होगा, जिसका आपने थोड़ा सा नाम सुना होगा रेजोनेंस, ठीक है, तो वो फिर रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगी, ये पूरी चीज़ इन्फिनिटी आ जाएगी। तो इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो यूपी क्या है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस ना, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इतनी बड़ा उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगी कि वो इन्फिनिट हो जाएंगी।
तो ये यही रेजोनेंस में होता है ना, चीज़ें टूट जाती हैं। वो रेजोनेंस को हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस टाइम पे ये सिर्फ मैं इसको इसलिए मैंने रिपीट किया था कि आपके जहन में रहे कि ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 6 आई है, दिस इक्वेशन नंबर 6 इज वैलिड ओनली फॉर व्हेन ओमेगा इज नॉट इज इक्वल टू ओमेगा एन। ठीक है, सो दैट वाज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन नंबर, इक्वेशन नंबर 6 इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन नाउ वी विल सी द कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। सो कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जो कि अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का था। यही वही कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज द फ्री वाइब्रेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन फोर्स वाइब्रेशन का। तो फोर्स वाइब्रेशन का सॉल्यूशन हमने इक्वेशन नंबर 6 तक की जो डेरिवेशन थी उसमें कर लिया। अब जो इक्वेशन नंबर 7 है, ये एक बड़ी वेल नॉन और ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड और ऑलरेडी हमारी समझी हुई इक्वेशन है कि ए कॉस ओमेगा एन टी, अगर आप यहाँ देख रहे हैं ओमेगा एन की टर्मिनोलॉजी आएगी, और प्लस बी साइन ओमेगा एन टी। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 7 एंड दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइब्रेशन। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन वी ऑलरेडी नो। सो नेक्स्ट फेज में हम क्या करेंगे, वी विल बी कंबाइनिंग दीज टू। So the complete solution is the sum of the particular solution and the complementary solution. So this is the complete solution. ठीक है, सो ये अगर आप पहला पार्ट देख रहे हैं, दिस इज द कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन, एंड ये जो सेकंड पार्ट देख रहे हैं ये वाला, दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये हमने कंप्लीमेंट्री और पर्टिकुलर का कॉम्बिनेशन कर दी है, एंड वी आर कॉलिंग इट एज इक्वेशन नंबर 8। तो अब अगर आपकी जो इनिशियल कंडीशन है उसको आप लगाते हैं और आप ये कहते हैं कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 योर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो अगर आपकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 आती है तो फिर आपके पास इसका मतलब ये है कि a इज इक्वल टू यू नॉट। ठीक है, टू डिटरमिन द कांस्टेंट b, तो a का आपके पास आ जाएगा कि a क्या चीज़ है। इसके अंदर अगर आप इसके अंदर u की वैल्यू 0 रख देंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे और टाइम 0 रख देंगे, तो आपके पास a जो बचेगा वो u नॉट बचेगा, क्योंकि साइन 0 इज 0, साइन 0 इज 0, दिस होल थिंग टर्म विल बिकम 0, दिस होल टर्म विल बिकम 0 एंड कॉस 0 इज 1, सो a वुड बी इक्वल टू यू नॉट। तो ये मैं सारी चीज़ें आपको वो करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब आपका जो लेवल है उस पर आए जहाँ आप चीज़ों की बैकग्राउंड को खुद समझने लगे हैं। क्योंकि अगर एक एक चीज़ मैं आपको डेरिवेशन पेन से उठा के और उसको यहाँ साइड पे डेरिवेशन करने लग जाऊँगा तो आपको थोड़ी सी आदत हो जाएगी स्पून फीडिंग की। तो थोड़ा सा आपको जिसे कहते हैं ना, तो पहले बच्चे का हाथ पकड़ के चलाना होता है, जिस तरह आपने पहले लेक्चर में देखा था, मैं आपको डेरिवेशन कर करके दिखा रहा था। तो अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आपने क्रॉलिंग के बाद मेरा हाथ पकड़ के जो चलना था वो स्टेप के बाद अब यू आर इन अ पोजिशन टू वॉक योर सेल्फ। ठीक है, सो विद दिस एक्सपेक्टेशन आई एम नॉट डिराइविंग ऑल दोज थिंग्स, आई मीन स्टेप बाय स्टेप मैं कोई डेरिवेशन करके आपको नहीं दिखाऊंगा। तो अगर आपकी कोई मुश्किल आती है आपको लेक्चर देखने के बाद, या इवन मेरे ड्यूरिंग मैं आप ये लेक्चर देख रहे हैं सुन रहे हैं उसमें आपको मुश्किल लग रही है, तो फिर यू कैन आस्क एनी टाइम। ये तो आपको पता है, मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि आपके मैंने कभी रात के 12 बजे भी लड़कों ने मैसेज करके क्वेश्चन पूछे हैं, और मैं अगर जाग रहा था तो मैंने उनके जवाब दिए हैं। ठीक है, तो आप कभी भी सवाल पूछ सकते हैं। तो ये जो डेरिवेशंस हैं वो मैं नहीं करके दे रहा हूँ, तो ये सिर्फ आपको मैंने बता दिया है कि टाइम 0 को इसके अंदर पुट इन किया है, तो आपके पास a की जो वैल्यू आई है वो u नॉट आ गई है। ठीक है, तो कांस्टेंट b की जब निकालना है तो इसका आपने फर्स्ट वेलोसिटी डेरिवेटिव लिया है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो साइन की डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, उस चीज़ को लेकर के आप जब इस पर्टिकुलर चीज़ का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 10 एंड ठीक है, तो वो वेलोसिटी की थी। अब जब टाइम 0 है तो हम देखते हैं कि ut की चीज़ क्या आती है, टाइम इज इक्वल टू 0, तो दिस इज व्हाट यू गेट व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। उस इक्वेशन नंबर 9 में, इक्वेशन 9 ही थी ना, इसको मैं देख लेता हूँ, इक्वेशन 10 में जब आप टाइम को 0 पुट इन करेंगे, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे कि आपको जो चीज़ मिलेगी वो ये चीज़ मिल जाएगी, ये जो इक्वेशन है वो ये मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें से जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ b, तो b को यही रहने देंगे, बाकी चीज़ों को वहाँ खिसका के ले जाएंगे, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 1। सो विद द इनिशियल कंडीशन व्हेन टाइम वाज 0 वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ b, वी हैव फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ c। अब जो कंप्लीट सोल्यूशन था जिसमें a, b और c लिखे हुए थे, उसके अंदर हम प्लग इन कर देंगे वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो ये समझ में आ रही चीज़ की, हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हमने गौर से देखा तो वी रियलाइज that this is a sort of differential equation which will have two solution, which will have one complementary solution and which will have another particular solution। ठीक है, तो ये मैं आपको सारा एक recap दे रहा हूँ।
हमने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के बाद हमें ये समझ में आई कि भाई ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके दो सोल्यूशन हो सकते हैं, जिसको एक को कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कह रहे हैं और दूसरे को पर्टिकुलर सोल्यूशन कह रहे हैं। एंड देन फिर हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन सजेस्ट किया, उसको सबसे पहले हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन सजेस्ट किया, उसको हमने सॉल्व किया, उसमें से हमें कांस्टेंट मिला सी, वो हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन को पूरा करके साइड पे रखा। देन फिर हमने जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन था वो हमने उठाया, और फिर हमने इससे पहले ये भी आपको बता दिया था कि कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्री वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन अज्यूमिंग देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, एंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन एज द फोर्स वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर टेकिंग द डायनेमिक फोर्सेज इनटू कंसिडरेशन, राइट। तो ये फिर कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन एंड देन पर्टिकुलर सोल्यूशन को तुमने सजेस्ट किया और उसको हमने कंबाइंड फॉर्म में लिखा। उसके अंदर से हमें तीन कांस्टेंट मिले, वी गॉट द कांस्टेंट ए, वी गेट द कांस्टेंट बी एंड देन वी गॉट द कांस्टेंट सी एज वेल, एंड देन वी ट्राई टू find out the values of constant A, B and C, and up till equation 11 we have found out the complementary solution, we have found out the particular solution, we have found out the value of A, we have found out the value of B, and as well as we have find out the value of C as well. So after finding out all those things, we will put in all those values, ठीक है, of constant A and B from all those things. So इस जो डब्बा है, इस डब्बे के अंदर आपके पास ये इक्वेशन आ रही है, एंड दिस पर्टिकुलर जो इक्वेशन नंबर 12 है, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ अ डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स्ड हार्मोनिक एक्साइटेशन। तो काफ़ी बोल लिया मैं, तो अब अगर आप इसको स्लो मोशन में मेरी बातों को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये इक्वेशन नंबर 12 क्या है। दिस इज द डायनेमिक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब ये कि मैथमेटिकल रिस्पॉन्स है, दिस इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स, ग्राफिकल रिस्पॉन्स नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स जो होते हैं वो ग्राफिकल भी हो सकते हैं, मैथमेटिकल भी हो सकते हैं। अगर वो ग्राफ की टर्म में लिखे हुए हैं तो दैट रिस्पॉन्स इज ए ग्राफिकल रिस्पॉन्स। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिस्पॉन्स। होता ये है कि हम मैथमेटिकल रिस्पॉन्स ले लेते हैं एंड देन मैथमेटिकल रिस्पॉन्स में हम वैल्यूज को पुट इन करते हैं, तो देन वी कैन प्लॉट द ग्राफ। तो ये जो इक्वेशन नंबर 12 आई है, ये इक्वेशन 12 इज अ कंप्लीट रिस्पॉन्स ऑफ अ डायनेमिक of a system undergoing vibration because of the forced harmonic excitation, ठीक है। So this has two part, which is the transient part, ये जो complementary part था, ये this is the representative of the transient part। transient क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। on this particular जो part है, जो इसको हम कह रहे हैं steady state, इसके नीचे हमने लिख भी दिया है, तो this is the transient state and this is the steady state। अब ट्रांजिएंट क्योंकि एक नई टर्म आई थी स्टेडी स्टेट, तो आप लोगों ने टर्म सुनी भी होगी। जो ट्रांजिएंट की टर्म है उसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, ये एक गूगल से एक जो मीनिंग आई है, ताकि मैंने इस जगह प्लग इन कर दी ताकि वर्ड थोड़ा सा अगर आपको नया लग रहा है तो उसके लिए। तो दिस इज एन एडजेक्टिव, ठीक है। इसकी मीनिंग ये है कि लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, इम्परमानेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिस्पॉन्स होगा ये ख़त्म हो जाएगा, फ्री वाइब्रेशन रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाएगा। और स्टेडी स्टेट जो है, स्टेडी स्टेट का मकसद यही ना कि ये फिर चलता रहेगा। तो ये आगे आप देखेंगे कि ये जब हम इसकी मैथ में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपकी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपकी समझ में काफ़ी मैथमेटिक्स थी, वो कि हमने उसकी गहराई में मैथमेटिक्स की नहीं गए हैं। मेरा ये वो है मानना है कि ये जितना हमने अब तक किया इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जानी चाहिए। तो अगर नहीं बन रही है तो चूँकि अब फेस टू फेस नहीं है, आई कैन नॉट असेस एट द मोमेंट कि आपको समझ में आया है या नहीं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो गॉड से इफ़ यू फाइंड एनीथिंग जो आपकी समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ डू आज pause this particular video whenever if you are watching it right now, pause this video, whatever confusion is there in your mind, ठीक है, take a snapshot, take a screenshot of that and send it to me through WhatsApp and write your question below this कि सर ये चीज़ मैंने यहाँ तक पढ़ी है और इसमें ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, ठीक है। सो यहाँ तक का समझ लेना आपका बहुत ज़रूरी है। ये मैं चीज़ इसलिए दोबारा आपसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आगे हम आपको जिन मंजिलों को दिखाने जा रहे हैं तो वो मंजिलों के लिए आपका यहाँ इस मंजिल का समझ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आगे मैं ये नहीं कह रहा कि पहाड़ आ रहे हैं, आगे जो इंटरेस्टिंग एक वो माइलस्टोन्स आ रहे हैं ना, जो शहर आने वाले हैं बड़े खूबसूरत, तो उस शहरों तक पहुंचने के लिए उनको आपकी आंखों को उस काबिल बनाने के लिए कि आप वो खूबसूरती देख सकें, ठीक है, तो उसके लिए ये चीज़ का समझ में आ जाना बहुत ज़रूरी है।
तो अब अगर आप उस इक्वेशन नंबर 12 को मैंने दोबारा लिखा है, इसके अंदर सिर्फ अगर आप ये देखेंगे तो मैंने कुछ कलर का इस्तेमाल किया है। ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये आप देख रहे हैं कि ब्लैक में लिखी हुई है, ये अगर आप देख रहे हैं तो आई हैव रिटन दिस इन ग्रीन, दिस आई हैव रिटन इन रेड, एंड ये फिर कोई ब्लू में मैंने लिखा हुआ है ये चीज़। तो ये क्यों लिखा है कि ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज हैं, दे आर, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कि अलग अलग आपको जहतें खोल रही हैं, या आपको आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग दुनिया आपको दिखाएंगी, ठीक है। तो वेयर द इंडिविजुअल टर्म कैन बी आइडेंटिफाइड, इनकी अपनी अपनी शनाख्त है। तो वो उनकी शनाख्त क्या है कि दिस पी नॉट अपॉन के इज द स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस पी नॉट, दिस पी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द डायनामिक फोर्स, दिस इज नॉट द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, दिस पी नॉट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द डायनामिक फोर्स। So P naught, that amplitude divided by the stiffness of that particular structure is basically the static displacement. अगर ये डायनामिक फोर्स नहीं होती और ये सिर्फ P नॉट लगी हुई होती तो आपके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट स्टैटिक आनी चाहिए। तो ये जो टर्म आपको नजर आ रही है दिस P नॉट के, यहाँ से मैंने इस रेड को उठा करके ये बाहर लिखा है और इसको हमने शनाख्त को, इस पर्टिकुलर चीज़ को हमने नाम दिया है कि दिस इज द स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट। एंड द नेक्स्ट टर्म जो कि ब्लू में आ रही है 1/1 माइनस दिस थिंग, इस चीज़ को पूरी को निकाल करके यहाँ ले आया हूँ। दिस इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन तो आपको पता है ना कि इस तरह कुछ चीज़ एम्पलीफाई होती है, बड़ी होती है, तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। तो उसके जो डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो इस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। ये तो मैं आपको पहले भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि ये जो रेशियो ऑफ फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी टू जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, दिस इनफैक्ट डिटरमिन। आप जैसे जैसे ये फोर्सिंग फ्रिक्वेंसी को नेचुरल फ्रिक्वेंसी के करीब लाएंगे तो आपको ये चीज़ पता है, ये कंसेप्ट पता है कि हम रेजोनेंस के करीब आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे रेजोनेंस के करीब आएंगे तो एम्प्लीकेशन जो डिस्प्लेसमेंट का रिस्पॉन्स है वो एम्पलीफाई होना शुरू हो जाएगा। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर टर्म इज वी आर कॉलिंग इट एज एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एंड दिस साइन ओमेगा टी टर्म जो है, यहाँ ये कलर में ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ, ये जो भी कलर है बरगंडी है जाए, ये दिस इज द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि दिस पर्टिकुलर जो टर्म है ये डिटरमिन करेगी कि एक स्ट्रक्चर के अंदर जो वाइब्रेशन आ रही है, जो कि लंबी ड्यूरेशन के लिए वाइब्रेशन आ रही है। एक ट्रांजिट वाइब्रेशन ये है कि वो थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन आएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो स्टेडी स्टेट रिस्पांस है वो ये पर्टिकुलर टर्म उसका जिम्मेदारी है, उसकी इस पर्टिकुलर टर्म को उसका रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया है। एंड देन लास्टली जो साइन ओमेगा एन टी है, ये अगर आप देख रहे हैं तो इसके साथ ओमेगा टी है और दिस इज ओमेगा एन टी। तो एन टी जब भी है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और ये ट्रांजिएंट रिस्पांस होगा। एन की टर्म हमने देखा था कि कंप्लीमेंट्री रिस्पांस के अंदर आई थी, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन के अंदर आई थी। तो दिस इज द ट्रांजिएंट रिस्पांस, this particular term is the sole responsible of the transient response, and this particular term which only have forcing frequency is the responsible for the steady state response. ठीक है, तो ये हम equation 12 has now been plotted for ओमेगा अपॉन ओमेगा n 0.2। इसका मतलब ये है कि फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो हमने 0.2 रखा है और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो हमने 0 रखी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने ये रख ली है। ठीक है, तो ये इस इनिशियल कंडीशन का अगर ये कंडीशन के लिए हम उस इक्वेशन के अंदर ये डाल दें जो कि इक्वेशन नंबर 12 थी आपकी, उस इक्वेशन के अंदर अगर आप ये कंडीशन डालें तो हम देखते हैं कि ग्राफ क्या बनता है। ठीक है, तो जो साइन ओमेगा टी टर्म है जिसको हम कह रहे हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस है, इज शोन बाय द डैश लाइन। ठीक है, तो ये इसका रिस्पांस बनेगा। वो जो इक्वेशन नंबर 12 थी, ये इक्वेशन को आप अपने जहन में रख लें कि इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन के अंदर आप वो सारी की सारी टर्म डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या टर्म डाल रहे हैं? ये वाली की फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी का रेशियो ये डाल रहे हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 डाल रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी ये डाल रहे हैं। तो जस्ट टू सी कि भाई ये जो रिस्पांस है, डिस्प्लेसमेंट रिस्पांस है, वो नज़र कैसे आएगा, तो वो ये ऐसा नज़र आएगा। तो अगर आप ये देख रहे हैं दिस इज द टोटल रिस्पांस, ये जो ये चीज़ है ये टोटल रिस्पांस का मतलब ये कि स्ट्रक्चर यहाँ इस डायरेक्शन में यूं मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, और फिर ये एक पीक पे पहुंचेगा। ये जो पीक थी ये एक झटका लिया और फिर दूसरा झटका लिया, पीक पे पहुंच गया। ठीक है, फिर ये नीचे आया, एक झटका लिया और ये झटका लिया, फिर 0 पे आ गया। तो इसका मतलब ये कि यूं इसकी वाइब्रेशन हो रही है। देख रहे हैं कि ये एक अपने पीक पे पहुंचा, ये आया, फिर ये एक मैक्सिमम पीक पे पहुंचा, फिर ये आया। तो ये जो है दिस इज द टोटल रिस्पांस। और अगर आप ये जो डैश लाइन के साथ देख रहे हैं दिस इज द स्टेडी स्टेट रिस्पांस। ठीक है, अब चूंकि ये अनडैम्प्ड था ना,
स्ट्रक्चर में हमने डैम्पिंग को इंक्लूड नहीं किया था, तो फिर ये क्या होगा कि ये जो रिस्पॉन्स है ये इन्फिनिट टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि आप फोर्स को भी नहीं हटा रहे हैं, ठीक है। डैम्पिंग की भी इसके अंदर नहीं है कि वो किसी तरीके से वाइब्रेशन को खत्म कर दे, क्योंकि बड़ा आइडियलाइज सिस्टम दिया हुआ है समझने के लिए। तो फिर ये जो कर्व है, दिस कर्व विल कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास मोशन इसकी नज़र आएगी। तो अगर आप इस मोशन को विजुलाइज करना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इसकी जो विजुअल होगा वो इस किस्म का होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 12 जो थी एंड फिगर शो दैट यूटी कंटेन्स टू डिस्टिंक्ट वाइब्रेशन कंपोनेंट, दो डिस्टिंक्ट वाइब्रेशन कंपोनेंट है उसके अंदर। तो वो कौन कौन से कंपोनेंट है, मेरे ख्याल में इस स्लाइड तक हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक ब्रेक ले लेते हैं। तो क्या है, द साइन ओमेगा टी टर्म गिविंग एन ऑसिलेशन एट द फोर्सिंग आर द एक्साइटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो साइन ओमेगा टी टर्म है ये जाहिर है ऑसिलेशन देगी, फोर्सिंग एक्साइटिंग, ओमेगा की टर्म मैं पहले बता चुका हूँ। दिस इज कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन और स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन, ठीक है। इट इज या इट रिप्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स नो मैटर व्हाट द इनिशियल कंडीशन। ये मतलब इनिशियल कंडीशन, चाहे आप इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दें, नहीं कर दें, वेलोसिटी जीरो कर दें, नहीं कर दें, दोनों इनिशियल कंडीशन मौजूद हो, नहीं मौजूद हो, तो ये जो रिस्पांस है साइन ओमेगा टी रिस्पांस, ये कह रहा है कि दिस वुड बी प्रेजेंट ऑल द टाइम, ठीक है। जो साइन ओमेगा एन टी या कॉज ओमेगा एन टी टर्म है, तो ये तो आपको पता है कि दिस इज दी, ये फ्री वाइब्रेशन रिस्पांस होता है, ट्रांजिएंट रिस्पांस होता है। दिस इज गिविंग एन ऑसिलेशन एट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम पर ऑसिलेशन देगा। इट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट वाइब्रेशन विच डिपेंड्स ऑन द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ये फिर डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट वाइब्रेशन जो होती है वो कह रहा है एग्जिस्ट इवन इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जीरो भी है तब भी, जिस तरह हमने यहाँ पार्ट 2 में कहा था ना कि जो ट्रांजिएंट रिस्पांस है वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंडेंट है, तो है तो डिपेंडेंट, लेकिन वो ये इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो दोनों इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जीरो है तो ट्रांजिएंट रिस्पांस नहीं होगा। रिस्पांस तब भी होगा, वो रिस्पांस वेरी करेगा अगर आपके पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी है, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, और अगर आपके पास दोनों नहीं है, इवन देन दिस रिस्पांस वुड बी देयर। सो अगर ये दोनों चीज़ें जीरो हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इन विच केस इक्वेशन 12 जो थी, जो हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन था, वो ये रह जाएगा, नंबर 13, इक्वेशन 13 बन जाएगा। तो अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी जीरो है तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 12 है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ए और बी आपके पास जीरो हो जाएगा, तो आपके पास ये रिस्पांस जाके बच जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर 13 की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ हम इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। सो थोड़े से वक्फे के बाद हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।